ابتدا اور ارتقا کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی، اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے، وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر۔ کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیرہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تلوک چند محروم کی زندگی محرومیوں سے عبارت تھی، لہذا ان کی شاعری میں بھی اسی کی فراوانی ہے۔ کچھ نئے داغ کچھ پرانے ہیں، کچھ نئے داغ کچھ پرانے ہیں، آج ان کو سبھی دکھانے ہیں۔ کچھ نئے داغ کچھ پرانے ہیں۔ محروم نے غزلوں کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی کہیں، اور وہ جس قدر غزل کے شاعر ہیں اسی قدر نظموں کے بھی ہیں۔ اے شمع دل فروز، اے شمع دل فروز، شبستان کائنات، اے شمع دل فروز، اے شمع دل فروز، شبستان کائنات، تیری کرن کرن ہے، تیری کرن کرن ہے، رگ جان کائنات، اے شمع دل فروز۔ محروم کی زندگی غم سے آسکارا تھی، اور زندگی کے بے اثباتی کے عناصر ان کی سوچ کی گہرائیوں میں جذب تھے۔ زمانے ہیں، اس میں کیا مختلف زمانے ہیں، آج ان کو سبھی دکھانے ہیں۔ کچھ نئے داغ کچھ پرانے۔ ناظرین آداب، آفتاب سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
ناظرین کہتے ہیں کہ شاعر کے حساس دل پر زندگی کی ہر تصویر اپنی چھاپ چھوڑ جاتی ہے. زندگی کے اتار چڑھاؤ، اس کی خوشی، اس کی محرومیاں خون دل کی سیاہی سے لکھے اشعار بن کر محفوظ ہو جاتی ہے. تلوک چند محروم کی شاعری بھی ان کی زندگی کا آئینہ ہے. زندگی جدوجہد اور مشکلوں سے بھری ہوئی تھی. 1857 میں محروم پنجاب کی ایک تحصیل عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے. ان کے گاؤں کا نام تھا گاجراں والا، جو اب پاکستان میں ہے. گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، لہذا ابتدائی تعلیم نہیں ہوئی. میٹرک کی پڑھائی اپنے گھر سے 70 کلومیٹر دور وکٹوریا ڈائمنڈ جوبلی اسکول جا کر کرنی پڑی. پڑھائی چاہے دیر میں شروع کی ہو، لیکن شاعری وہ تیسری جماعت سے ہی کرنے لگے تھے. بیچ بیچ میں یہ سلسلہ ٹوٹتا بندھتا نظر آتا، لیکن جب بھی کوئی چیز ان کے دل کو چھو جاتی تو شعر بن کر نکلتی. محروم جب سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور میں داخلے کے لیے آئے تو ملکہ نور جہاں کے مزار پر بھی گئے. مقبرے کی ویرانی دیکھ کر محروم نے ایک نظم کی، نور جہاں کا مزار. چوپائے جو گھبراتے ہیں گرمی سے تو اکثر، آرام کیا کرتے ہیں اس روزے میں آ کر. معمور ہے یوں گورے غریبانہ کسی کی، آباد رہے محفلے جانا نہ کسی کی. خود تلوک چند محروم کی زندگی بھی ویران اور اجڑی ہوئی تھی. اپنی شریک حیات اور بیٹی کی موت نے محروم کی روح کو زخمی کر دیا تھا. ان کی سوچ نے درد کا لباس پہن لیا تھا. بجھ نہیں سکتی جو دل میں آگ ہے بھڑکی ہوئی، ہو گئے دوزخ زمین و آسمان میرے لیے. لیکن محروم نے اپنی شاعری کو صرف اپنے درد کی عکاسی کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی نظر ڈالی. کائنات کے حسن و جمال سے متاثر ہوئے تبھی تو آفتاب کے حسن کو دیکھ کر یوں کہہ اٹھے، پورا رو بقا کے لیے شمع راہ ہے، تو راہ رو بقا کے لیے شمع راہ ہے. تیرا وجود حسن، تیرا وجود حسن ازل پر گواہ ہے. تیرا وجود حسن ازل پر گواہ ہے. اے شمع دل فروز شبستان کائنات، اے شمع دل فروز. ناظرین آداب، اردو ایک زبان ہی نہیں تہذیب کا بھی نام ہے. شاعری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ زبان کا کوئی مذہب ہوتا ہے. اردو میں جب بھی قومی اور وطنی شاعری کا ذکر آتا ہے، ایک طرف ہم چکبست کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف تلوک چند محروم کا نام بھی لیا جاتا ہے. اردو میں قومی اور وطنی شاعری کی ایک مضبوط روایت پائی جاتی ہے. آج ہم تلوک چند محروم پر بات کر رہے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور شاعر اور نقاد پروفیسر عتیق اللہ صاحب. عتیق اللہ صاحب اپنے کارناموں کی وجہ سے پوری اردو دنیا میں جانے جاتے ہیں. دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر رہے ہیں. آج یہاں موجود ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے. میں مرید رشیدی. عتیق اللہ صاحب، تلوک چند محروم کی شخصیت، ان کی شاعری کی جو خدمات ہیں، ان کا اعتراف کیا جاتا رہا ہے. تاریخ کی کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ ان شعراء کو ہم نے فراموش نہیں کیا ہے. ان کی شاعری پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے جو اجزائے پریشاں ہیں وہ یکجا ہو جائیں اور ہمارے ناظرین یہ جان سکیں کہ ان کی شخصیت اور ان کے سوانح کے خاص پہلو کیا ہیں. معید صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی بھی شاعر کی اپنی شاعری میں یا کسی بھی ادب کی کسی بھی صنف میں سے اگر اس کا تعلق ہے تو اس کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی اثر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ
रास्त या नारास्त उस पर पड़ता है। और बल्कि ये कहा जाए कि जिंदगी भर एक हॉन्ट करता है वो ज़माना, जो कि उसके बचपन का ज़माना हो या उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी में जो एक तरह से नशे वो फराज वाक़ होते हैं, तो उनके असरात उसके फ़न पर ज़रूर पड़ते हैं। बाज़ हज़रात, बाज़ नक्काद ये भी कहते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक मारूजियत होनी चाहिए, लेकिन शायर से मारूजियत का तकाजा करना एक गलत दरवाजे पर दस्तक देना है। इन मानों में अगर तिलकचंद मेहरून को हम देखें, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी सवानिक के बारे में, तो ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सूबे सरहद का इलाका, जहाँ जिसे ईसा खैल मियांवाली कहते हैं, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी 1887 में, यानी 1887 में। यानी आप जाहिर है कि 1887 का वो ज़माना कि जब ये पैदा हो रहे हैं और अंजुमन पंजाब ने नज़म की मुनाज़में शुरू कर रहे हैं, तो नज़म गोई की रवायत का आगाज़ हो रहा है और इनका ये पैदाइश का ये ज़माना है। इस एतबार से 1887 में हाली भी थे, आज़ाद भी थे, इस्माइल मेरठी भी थे, दुर्गा सरूर भी थे, और इसके अलावा नस्र में भी बहुत काम हो रहे थे। उससे सैयद की पूरी तहरीक अपने उरूज पर थी। तो तिलोकचंद मेहरून को बहुत अच्छा ज़माना मिला था। ये भी उसी खानवादे से इनका ताल्लुक था कि जो पेशे में तो वो ज़मींदार थे और काश्तकार थे। तो जगन्नाथ आज़ाद इनके साहबजादे थे। उन्होंने एक बार ये कहा भी है कि मेरे वालिद साहब अक्सर कभी ना कभी उनको मियांवाली या दरियाए सिंध का किनारा याद आ जाता है और ये गुमसुम हो जाते हैं। जय तो ये इन्होंने कई बार उनसे दरियाफ्त किया, तो वो कहते हैं कि मेहरून साहब जो थे वो उन्हें अपना बचपन का ज़माना आखिर उम्र तक याद रहा और वो उसे टीस उठती थी उसकी। तो वो दरियाए सिंध का किनारा फितरी माहौल, यानी एक तरह से वो पूरी जंगल आबाद था दूर दूर तक, और बहुत अच्छा एक फितरत का मंजरनामा था। तो तिलोकचंद मेहरून की शख्सियत को बनाने में, उनकी शेरी शख्सियत को बनाने में उनके बचपन के इस फितरी माहौल का बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर ये भी हुआ कि जब उन्होंने बीए की तालीम पाली लाहौर से पाई, तो उसके बाद वो सीधे महकमा तालीम में चले गए और महकमा तालीम में एक दरसो तदरीस को का जो मौका मिला, तो हो सकता है कि उनके ज़हन में दरसो तदरीस की वजह से बच्चों की नज़मों की तरफ तवज्जो हुई, और ख्वाब तिफली नाम की जो उनका मजमूआ कलाम है, उसमें उन्होंने बच्चों पर बहुत नज़में लिखी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने नसीहतें लिखी हों, उन्होंने हर तरह की नज़में लिखी और बच्चों में एक तरह से वतन के जज्बा, वतन के लिए क्या होना चाहिए, यानी ऐसा माहौल जबकि पूरा मुल्क महकूमी में और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उस वक्त बच्चों के अंदर ये शऊर पैदा करना ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत, और हमारे यहाँ अदब अतफाल की जो रिवायत पाई जाती है वो बाद में तो बहुत इस्टेब्लिश हुई, लेकिन एक मुनज़्ज़म तौर पर जिस तरह वो रिवायत आगे बढ़नी चाहिए, वो शायद उस ज़माने तक बहुत पायदार नहीं थी। लेकिन इस्माइल मेरठी हमें नज़र आते हैं, हाली नज़र आते हैं और तिलोकचंद मेहरून नज़र आते हैं। तो ऐसे बिल्कुल इन्होंने शऊरी तौर पर, ख़ास तो इस्माइल मेरठी का नाम तो बहुत नुमाया है, बल्कि इस सिलसिले में पहला नाम उनका लिया जाता है। और तिलोकचंद मेहरून ने बच्चों के लिए शायरी की, और आपने बताया कि दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे, और शायद इसी वजह से उनके जहन में ये ख्याल आया कि बच्चों के लिए भी शायरी की जाए ताकि उनकी तरबियत हो सके और उनका जहन भी तैयार किया जा सके कौम के लिए, वतन के लिए, शेर व अदब के लिए। तो ये बड़ा नुमाया काम किया तिलोकचंद मेहरून ने, जो एक पूरी रिवायत बाद में बन गई। मैं इससे दरअसल इन मानों में भी गौर करता हूँ कि सिर्फ तिलोकचंद मेहरून ही हैं बच्चों की शायरी पर बहुत ज्यादा जिन्होंने लिखा, और दूसरे जो उनके मुआसिर थे उन्होंने, यानी दुर्गा सहाय सरूर हैं, उन्होंने नहीं लिखा, हरीचंद अख्तर हैं, उन्होंने नहीं लिखा, फिराक गोरखपुरी उसके बाद आते हैं जो कि इसी अहद के हैं, मेहरून के अहद के, उन्होंने नहीं लिखा, जोश है उन्होंने नहीं लिखा। तो ये नज़्म शौरा बड़े बड़े फलसफियाना किस्म के मौज़ूआत की तरफ गए और इत्तेहाद कौमियत का नारा बुलंद करते रहे, इनकलाब की आवाज़ बुलंद करते रहे, और जोश आफरीनी बहुत ज्यादा इनके कलाम में थी। लेकिन एक बच्चों की सतह पर बच्चों की जबान में शायरी करना ये एक बहुत मुश्किल काम था, और बच्चा बन जाना
इस एतबार से त्रिलोक चंद महरूम का एक तो ये पहलू हुआ, दूसरा पहलू इत्तेहाद कौमियत का था। यानी इत्तेहाद कौमियत से मुराद ये कि जिस तरह से कौमियत का शीराजा बिखर रहा था, जो लिसानी तनाज़े उठ रहे थे, जो फ़िरक़ा वाराना फसादात तो के थे और अंग्रेज़ों की एक पूरी साजिश के तहत जिस तरह से एक दुई और दो लख्ती पैदा की जा रही थी, तो ये शिराजा बंदी जो बिखरती हुई नजर आ रही थी, इसके लिए जिन लोगों ने आवाज़ बुलंद की, उसमें जाहिर है कि चकबस्त का नाम है और ख़ुद त्रिलोक चंद महरूम का नाम बहुत अहमियत के साथ लिया जाता है। फिर यह है कि इन्होंने अपना एक मकसद ज़िंदगी बनाया था। जगन्नाथ आज़ाद ने जब इनके बारे में लिखा है तो वो ये कहते हैं कि उनका मकसद ज़िंदगी ये था कि किस तरह से मुश्तरका तहजीब ने जो बरगुबार पाए हैं, जिस तरह से उससे जो तक़वियत मिली है, हिंदू और मुसलमानों की एक तरह से जो विरासत है, जो सदियों की विरासत है, उस विरासत को किस तरह से महफूज रखा जाए। तो महरूम की 80 से 90% शायरी इसी इत्तेहाद कौमियत की बुनियाद पर कायम है, इसी मुश्तरका तहजीब की नुमाइंदगी वो करते हुए नजर आते हैं। इस लिहाज से फलसफियाना मज़ामीन भी है, फलसफियाना नज़में भी हैं, उन नज़मों को भी सामने रखें तो उनके यहाँ हैत की सतह पर तो कोई तजर्बा नहीं मिलता है। यानी चूंकि वो ज़माना ऐसा था कि हैत के तजर्बात बहुत हो रहे थे, यानी नून राशिद भी थे, मिराजी भी थे, तसद्दुक़ हुसैन खाली भी थे, मुख्तार सिद्दीकी भी थे, शरर थे पूरा। अच्छा, उससे पहले शरर का दिलगुजार रिसाला भी था, बिजनौरी भी नज़में लिख रहे थे नई। अज़मतुल्लाह खान ने तो पिंगल को तरवीज दिलाना चाहिए थी और तसद्दुक़ हुसैन खालिद ने आज़ाद नज़्म का आगाज भी किया था। तो ये सब जो एक पैनोरमा है, एक फजा बन रही थी, तो उसमें उस तरह के तजर्बे नहीं किए। लेकिन ये बहुत बड़ा कारनामा है कि अब जो रवायत हमारे यहाँ कायम रही है असनाफ की, उन रवायात का लिहाज रखते हुए अपने माफ़ूज़ ज़मीर की अदायगी कर सकें, ये वो उन्होंने अदायगी की। और उन्होंने मुसद्दस के फॉर्म में भी नज़में लिखी, उन्होंने गज़ल के फॉर्म में भी नज़में लिखी, उन्होंने छोटे छोटे से यानी एक मकबूल ख़ास और मकबूल आम जो रिवाज है, हफीज़ जालंधरी भी छोटी छोटी सी मुख्तसर बहरों में नज़में कह रहे थे। इसी तरह से मुख्तसर बहरों में अज़मतुल्लाह खान लिख रहे थे। इसी तरह कुछ मुख्तसर बहरें कुछ अख्तर शिराज़ी ने भी लिखी हैं। तो ये त्रिलोक चंद महरूम का ये बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने छोटी छोटी सी बहरों में हयात के तजर्बे किए। बहुत अच्छी नज़में इस टाइप की उनके यहाँ हैं। तू मरकज़े सबात है दौरे हयात का, तू मरकज़े सबात है दौरे हयात का, है तुझसे एहतिमाम, है तुझसे एहतिमाम दो रोज़ा सबात का, है तुझसे एहतिमाम दो रोज़ा सबात का, है शम्मे दिल फरोज़। ये वाकई बड़ी बात है कि उन्होंने नज़्म को निभाया। और होता ये है हमारे यहाँ कि आसानी से लोग गज़ल की तरफ माइल हो जाते हैं, और चूँकि उसका एक चार्म तो होता है और हर अहद में रहा है। मीर से अगर हम देखें, उससे पहले भी हम चले जाएं तो गज़ल की जो रिवायत है उसमें ज़्यादातर शुअरा उसी तरफ बह गए, नज़्म की तरफ बहुत कम लोग आए। लेकिन उस अहद में, उनसे पहले के अहद में हमें गालिब नज़र आते हैं, एक बड़ा बुत नज़र आता है गालिब का, और इनके अहद में जो बड़ा बुत हमें नज़र आता है वो इकबाल का नज़र आता है। तो इकबाल खुद नज़्म की तरफ माइल थे। अच्छा, गज़ल तो उन्होंने कही, लेकिन बिल्कुल नया अंदाज है इकबाल का गज़ल में भी। दूसरी बात अतीकुल्लाह साहब, कौमी शायरी का इख्तिसास हम त्रिलोक चंद महरूम से कायम करते हैं, तो वहाँ इकबाल है, इकबाल के यहाँ भी कौमी और वतनी शायरी मौजूद है।
जी, इसमें कोई शक नहीं। जी। लेकिन ये है कि इकबाल के यहाँ जो एक फलसफियाना विजन था, जी। वो उसने भी कुछ पर्दे डाल दिए थे और बहुत ही फलसफियाना गहराई के साथ उन्होंने अपने इन मौज़ूआत को बरता था। लेकिन त्रिलोकचंद महरूम के यहाँ वो पर्दादारी जो है वो नहीं है, जो इस्तिआरे से पैदा होती है, जो नारास्त ज़बान की वजह से पैदा होती है, जो फलसफियाना विजन की वजह से पैदा होती है। अकबर इलाहाबादी जैसा शायर था उस वक्त, बिल्कुल, और अकबर इलाहाबादी के अलावा भी महरूम के असरात बहुत बलीग थे लोग, यानी उस नस्ल पर। जी। तो उन्होंने तो उन्होंने एक कता भी कहा है अकबर इलाहाबादी ने, जो कि महरूम के लिए है दाद का मुस्तहिक कलाम महरूम है का जमाल और मानी का हुजूम, लफ्जों का जमाल और मानी का हुजूम है उनका सुखन मुफीद दानिश आमूज, उनकी नज़मों की है बजा मुल्क में धूम। अब गौर कीजिए कि इसमें चार बातें हैं। लफ्जों का जमाल नंबर 1, फिर यह है कि मानी का हुजूम, जिसको यानी इफादियत बख्श, यानी उनके यहाँ की उनकी इफादियत बख्श शायरी पाई जाती है। और दानिश आमूज, जो कि हमारे अक्ल को मुतासिर करती है, हमारे जज्बों के साथ साथ अक्ल को भी मुतासिर करने वाली। तो अकबर इलाहाबादी जैसा शायर भी उनके बारे में ये बात कह रहा है। बिल्कुल अतीकुल्लाह साहब, ये बात बिल्कुल सही है। असल में महरूम हो या उस अहद के दूसरे शायर, यहाँ तक कि इकबाल भी, ऐसा महसूस होता है कि उस ज़माने के जो मुहर्रिकात थे, जो इनकलाबात थे, उनका असर बराह रास्त उनकी शख्सियत पर पड़ रहा था और वो उनसे मुतासिर हो रहे थे। इजहार का पैराया अलग हो सकता है, लेकिन मौज़ूआत थे और उनका बयान जिस तरह अलग अलग शायरों ने किया है, तो महरूम के साथ तो एक उनकी ज़ात का कर्ब है, दूसरे ज़माने का कर्ब है। तो कर्ब को अपनी ज़ात का नूर बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और त्रिलोकचंद महरूम ने ये कारनामा अंजाम दिया अपनी शायरी के ज़रिए कि मुख्तलिफ शेड्स पैदा किया अपनी शायरी में, वतनी शायरी, बच्चों की शायरी, फिर मनाजिर फितरत का जिस तरह आपने जिक्र किया, इस खूबसूरती से बयान किया उन्होंने। तो कि जो पूरी रिवायत हमारी कायम होती है उसमें एक नुमाया नाम हमें त्रिलोकचंद महरूम का नज़र आता है। आखिर में अतीकुल्लाह साहब, चलते हुए मुख्तसरन हम ये जानना चाहते हैं कि आज उनकी शायरी की मानवियत क्या हो सकती है? आज उस लिहाज से हमें बार बार उनको दोहराना, यानी हमें माजी के उन जिंदा हिस्सों को दोहराने की ज़रूरत है और नई नस्लों को याद दिलाने की ज़रूरत है कि उन लोगों ने किस तरह से अपने आप को फना फिल अदब कर दिया था और किस तरह उन्होंने अदब की और ज़बान की खिदमात अंजाम दी। और ये खिदमात वो हैं कि जो हमारी तारीख़ उसे सुनहरी लफ्ज़ों में आज भी याद कर रही है, और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हमारी तारीख़ इसे इसी तरह दोहराती रहेगी। और ये हमारी कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब के अमीन भी हैं और पूरी रिवायतों के अमीन हैं। तो अतीकुल्लाह साहब, आपने बहुत अच्छे गोशे रोशन किए और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। आप तशरीफ लाए, आपने भी की है। जी शुक्रिया। हम भी ऐसे नए नहीं महरूम, हम भी ऐसे नए नहीं महरूम, हम भी ऐसे नए नहीं महरूम। ये जफा में अगर पुराने हैं, ये जफा में अगर पुराने हैं, आज उनको सभी दिखाने हैं। कुछ नए दाग, कुछ पुराने